So good morning, everyone. Okay, so let's begin our this new topic, that is a coagulation. In last lecture also we have seen some part of the coagulation. In continuation to that only, we'll move further. Okay, so in general, in a very nutshell, I would like to tell you about what is actually happening in the coagulations. So in coagulation, what we are doing, we are adding a coagulant in the water. Okay, this is your beaker. This is your beaker where water is poured over here, and you can see these particles are known as impurities present in the water. Okay, now what you are doing, you are adding the coagulant. Okay, now after some time you will see that coagulant forms a precipitate trapping impurities. आपके जो ये coagulant particles है, that can be in yellow color and your particles are in the blue color. So you can see there is a binding between this coagulant and this particles. Whatever the heavy particles are there, वो तो settle हो जाएंगे, लेकिन जो settle नहीं हो रहे, those particles we are not getting settled, that will be binding with this your coagulants. So if you give some time for settle all those particles, then you can realize it. You can see this. All the particles, all the impurities, I'm saying particle, that is the impurities. All the impurities are settled in the bottom with the help of this coagulation. Whatever the colloidal particles are present in the suspension, they will get aggregated and making a big mass, and then due to the gravity, that will be a settle on. So this is a complete process of the coagulation. But for this complete this process, there is a chemistry behind this. So we are going to see what is the chemistry of this coagulation. So a very important role plays over here is like electrical double layers. ये होता क्या है, ठीक है, ये इसका coagulation में इसका role क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, right? So if you put a charged particle in a suspension with the ions, हम बात कर रहे हैं, if you put a charged particle in a suspension with ions, let us consider a beaker में आपका पानी है, पानी के अंदर impurities है. What we are trying to say that those impurities are the negatively charged. Okay, those are the negatively charged, and which are a primary charge will attract counter ions. तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, so this inner sphere will be your known as your particles, or you can say this is your impurities. So impurities are having this negative charge. तो क्या होगा कि इसके आजू बाजू में जो भी आपका सस्पेंडेड वाटर है, उसमें आपने जब कोएगुलेंट ऐड किया है, तो whatever the positive charges where there positive ions that will be attract toward this. Okay, वो उसके तरफ में attract होगा, ठीक है. बाकी के जो charges होंगे, those will be in the suspension. Okay, so counter ions opposite charge by electrostatic attraction. किस वजह से हो रहा है? That is known as electrostatic attraction. The primary charge cannot attract an equal amount of counter charges because a gradient of counter ions is established. वो जैसे अगर 30 उसका वैल्यू होगा, तो अपोजिट नेचर का 30 उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो ग्रेडियंट बनने वाला है, that will make a proper counter ions established that derive the counter ions away from the surface. Okay. The formation of the electrical double layer then occurs via attraction of oppositely charged counter ions. The formation of the electrical double layer (EDL), okay, I will show you in this diagram, then occurs via attraction of oppositely charged counter ions by the primary surface charges, and then a diffusion of the counter ions away from the surface. The counter ions are mobile, the primary charge is not. Let me clear this in this diagram. If you see this diagram, so there are different spheres. आपका जो particle है इसमें negative है, उसके जो आजू बाजू के आपके सस्पेंशन में जो वाटर सस्पेंशन में जो आपके पॉजिटिव आयंस होंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो उसकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, बट इट इज नॉट लाइक उसका इक्वल अमाउंट में, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे 30 है, तो 40 जो आपका 30 है वो नहीं आएगा, उससे वेरिएशन जो कम ज्यादा है वो उसके क्लोजर में आ जाएगा, राइट. सो देन रेस्ट यू कैन सी this plus minus are making what? It is making a potential. It is making a potential. Okay, if you see this diagram and if we correlate with this curve,
यहाँ कर्व में देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आपको वाई एक्सिस में ये पोटेंशियल है। लेट अस सी दिस, ये जो आपका फर्स्ट लेयर है, यहाँ से हम अगर इसकी बात करते हैं, सो दिस विल बी एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस। हमने उसको एज इट इज वाई एक्सिस में उसको कंसिडर किया। नाउ जो हमने सेकेंड स्पेयर लिया, अगर उसका जो ये हम लाइन अगर एक वर्टिकल डाउनवर्ड लेंगे, so whatever the gap will be there, that will be known as a fixed layer। वो आपका क्या हो जाएगा, this is your fixed layer, ठीक है, this will be your fixed layer। now if you go further, तो ये आपका जो स्पीयर है, अगर यहाँ से हम इसके बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड में लेके आया, तो it is intersecting to this curve, right? it is intersecting to this curve। अब ये जो कर्व है क्या बोलता है कि ये डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल है। अब ये हम इसमें जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। आई रिपीट, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, आयंस का डिस्टेंस जब बढ़ेंगे, तो उसमें जो पोटेंशियल जो पावर होगा, जो आपका अट्रैक्शन होगा, दैट विल बी गेट ड्रॉप। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दिस कर्व इज इन दिस नेचर। यही उसका रीजन है कि ये उसके नेचर से ये स्लोप में क्यों जा रहा है। ओके, सो अब ये कह सकते हैं कि हियर इट विल हैव अ मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम हो गया और ये यहाँ पे आपका मिनिमम हो गया। नाउ what we are trying to say कि ये आपका एक shear plane है। this is your shear plane, this is your shear plane। shear plane का मीनिंग क्या होता है कि just tends to be, वहां से वो फेल हो सकता है या वहां से वो क्या होगा, रिपल्शन जा सकता है, और या tends to be repulsion हम बोलेंगे, ठीक है। so that will be that plane, this is the plane which is known as a shear plane। now the distance between this layer and this layer, you can see distance between distance between this layer to this layer, that will be your known as a bulk solution। जो भी उसके सराउंडेड में है, that is known as bulk, sorry, that will be known as a diffuse layer, ठीक है। this is known as a fixed layer। ये हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका fixed layer। let me clear this। ये हो गया, this is your fixed layer, okay। but यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेयर होगा वाटर सस्पेंशन में, this will be your diffuse layer, ठीक है। now this will be your shear plane, ठीक है। अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे ये ग्राफ के साथ में, when this shear plane is get intersected with this potential curve, ठीक है, if it is cut with this potential curve, just say this is meeting in this point, okay, this is the intersection point। so this intersection point will give you, this is a zeta potential, this is known as zeta potential। ये पॉइंट ऐसा होगा कि जब ये just tends to be जा रहा होगा, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा होगा, यानी रिपल्शन में हो सकता है या फिर आपका बाउंडेशन में हो सकता है। सो दैट इज अ जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मीनिंग है जहाँ पे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी जो नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस होंगे उसका जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट इज नोन एज अ जीटा पोटेंशियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका जीटा पोटेंशियल। अब ये जो सरफेस है, सरफेस से लेके यहाँ मतलब जहाँ पे हाई है और जहाँ पे सबसे लो है, तो इनको हम बोलेंगे आपका सरफेस पोटेंशियल, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। माइट बी दिस कैन बी आस्क्ड, वैसे तो ये अगर आप फर्स्ट ईयर में भी शायद आपने पढ़ा होगा, तो ये फर्स्ट ईयर में जनरली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हो गया या फिर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, तो वहाँ जनरली पूछता था। When I was a student, so this question were asked in first year, okay। So I don't know whether it is asking for this or not, I have to check the question papers, but yes, this is also a equally good question from the examiner point of view, okay। Now the same concept we'll see over here in this graph, whereas you can see this is the LM dose। अभी है LM dose यानी क्या, this is your coagulant dose in mg per liter, okay। now if you see this y axis, so y axis में ये zeta potential दिया है in the terms of mv, millivolt potential है, तो ये क्या होगा, millivolt में निकालेंगे, okay। so -25 to +5, okay।
इफ यू सी दिस प्रॉपरली दिस ग्राफ, तो यहाँ पे आपको ओरिजिन दिया हुआ है O, दैट इज 0. ओके, सो अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज मेक ओवर हियर लाइक दिस. ओके, सो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप डोज प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जीटा पोटेंशियल की वैल्यू या तो नेगेटिव में रहेगा या आपका पॉजिटिव में रहेगा. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, आपका ग्राफ विल बी लाइक दिस. बट make sure about this is your zeta potential, right? Make sure about this is the important point over here. ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, this is your important point, इसको आपने ध्यान में रखना है. Now next is the turbidity of ये आपका y axis अगर है, okay, so this will be your y dash. ठीक है, ये आपका y है तो ये आपका y dash है. एक एक्सिस में हमने जीटा पोटेंशियल की वैल्यू उसको पुट किया है और दूसरे एक्सिस में हम क्या बोल रहे हैं कि उस वाटर का जो टर्बिडिटी वैल्यू है वो हमने उसमें डालने की कोशिश किया है. ये टर्बिडिटी कैसे रिमूव हो रहा है वो हमने इसमें डालने की कोशिश किया है. अब के देखिए कि एलएम डोज हमने जैसे जैसे बढ़ाया, जीटा पोटेंशियल की मतलब क्या पोटेंशियल डेवलप होता रहेगा, उसकी वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी. Whereas if you see in the turbidity, as we are adding a dose, the value of turbidity is getting reduced. से सपोज करो कि यहाँ पे अगर ये पहले इनिशियल वैल्यू उसका 100 था, देन ये क्या हो रही वैल्यू उसकी रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि आपका जो वाटर है टर्बिडिटी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है. बट देयर विल बी अ मूवमेंट, एक मूवमेंट आएगा, उसके बाद क्या होगा, टर्बिडिटी को फिर से वो बढ़ाना शुरू कर देगा. व्हाई दिस टर्बिडिटी इंक्रीजेस, बिकॉज कि कोएगुलेंट है आपका, ठीक है, कोएगुलेंट इज इटसेल्फ अ पार्टिकल. देयर विल बी अ ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, ये आपका एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू रहेगा. ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर आपने डोज बढ़ाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसमें कोई और आपका जो रिमूवल है वो अब रिमूवल नहीं होने वाला है. दैट इज अ फाइन. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे जैसे और आप कोएगुलेंट ऐड करते जाओगे, पार्टिकल्स ऐड करते जाओगे, इटसेल्फ क्रिएट टर्बिडिटी, वो खुद ही टर्बिडिटी करके क्रिएट मतलब खुद ही टर्बिडिटी करके होने लग जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन उसमें क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. तो ऐसे में क्या होगा कि वो टर्बिडिटी की वैल्यू फिर से बढ़ती रहेगी. So that will be known as a optimized value. Okay, so that is known as your optimized value. Okay, so this particular point is also very important. Remember this is important as well as this is important. If you see properly, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पे आ रहे हैं. ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे आ रहे हैं. ये कहने का मतलब है कि आपका 100% रिमूवल कब होगा, इस पॉइंट में होगा. अगर आप इतना डोज प्रोवाइड करते हो, यू कैन से इट विल बी अ 100% रिमूवल. अगर वो रिमूवल हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उसमें या पोटेंशियल कितना होना चाहिए, वहां पे ये 0 हो जाना चाहिए. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो very important. So this is the correlation between your zero potential and your turbidity. Okay, now this is the coagulant chemistry which is important. Now when we say coagulant, so हम एक alum जो है वो बहुत ज्यादा तौर पे हम लोग यूज करते हैं. Okay, so alum का जो फॉर्मूला है that will be Al2SO4 thrice then NH2. ये N is your variable, this N is your variable. Okay, and ferric chloride FeCl3 dissociated to release high charged ions. Okay, so we'll have two equations, one is in the term of Al and another in the term of Fe. So Al2SO4 whole 3 जो भी आपने alum लिया है ये हमने डाल दिया, उसको क्या होगा, इसको जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, so what will happen, it will be break like this, twice of Al3 plus thrice of SO4 2 minus plus NH2O. ठीक है, ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया. Then if you talk about FeCl3, so this will be converted in Fe3 plus 3Cl minus. ठीक है, इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया इसमें. These ion tends to bind either directly to particle surface. I repeat, these ions tends to bind either directly to particle surface. जो हम एड्सॉर्प्शन करके बात करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सरफेस फिनोमिनन होता है, जो आपका जो पार्टिकल्स है वो कोएगुलेंट के साथ मिक्स कर जाएगा, यानी कि उसके सरफेस में आके सेट हो जाएगा. ओके, और टू नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, आपको कई जगह पे NOM ही दिखेगा, बट उसका NOM का फुल फॉर्म होता है आपका नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर ऑन दो सरफेस. ठीक है,
Either way, they reduces the negative charge associated with the particles. Negative charge किसके साथ में है? Particles के साथ में, तो उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे. And reduces the repulsion. क्या होता है कि पार्टिकल में से सेम चार्ज होने के कारण क्या होता है? वो रिपल्शन होते हैं. लेकिन अब जैसे ही ये आपके पार्टिकल के सरफेस में आके कोएगुलेंट आके सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका पूरा पोटेंशियल को वो चेंज कर देगा, जिसकी वजह से अभी जो आपके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आइडियली द चार्जेस इज ब्रॉट टू नियर जीरो. द चार्जेस है दैट विल बी नियर टू जीरो एंड रिपल्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड. जब उसमें उसके चार्जेस जीरो हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्युमुलेट हो जाएगा और जो रिपल्शन है वो हम रिमूव कर देंगे. Under some condition, adsorption of Al and Fe species can overwhelm in a charge contributed by a adsorbed in your natural organic material and causes a restabilization of the particles. Similarly, yeah, that was the first mechanism. ये आपका हो गया first mechanism. In continuation to this is the second mechanism. At a higher concentration and pH, solids can precipitate and image the collide in a swift flock. Okay. तो क्या होता है कि pH का भी एक रोल होता है. अगर pH एसिडिक होगा तो मतलब कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा. pH अगर अल्कली रहता हो तो कुछ और तरीके से वो बिहेव करेगा. तो कहने का मतलब है कि स्वेप फ्लॉक आपका प्रोड्यूस होता है. तो Al3++ thrice of OH will give you AlOH whole thrice, which will be in the suspension. या ऐसे यानी कि आपका सस्पेंशन. Fe3++ 3OH minus, that will give you FeOH whole thrice. Again, that will be in the suspension. You can see this is a mechanism too. अभी क्या हो गया कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्ड हो गए एंड दे आर मेकिंग अ फ्लॉक्स. ये आपका फ्लॉक्स प्रोड्यूस कर रहा है. Okay. The third mechanism, polymer can induce coagulation by bridging between the particles. You can add polymers. That is not an issue. You can add a polymers. So you can see this will be a particle. This will be particle. But ये जो दिखा रहे हैं branches वाइज जो आपको दिखा रहे हैं, these are the polymers. Polymers को एक मतलब shape रहेगा. ठीक है. That will be in any kind of shape, but it has a some shape. तो क्या करेगा? वो पॉलीमर आपके मटेरियल को बाइंड करना शुरू कर देगा. Right? So method of destabilized colloids. So that happens in the coagulation process. Let's see this. So there are basically four methods. Double layer compression. You can see the double layer compression. This can be accomplished by addition of indifferent electrolyte. I repeat, by addition of an indifferent electrolyte, which is known as your charged ions with a no specific attraction for a colloid primary surface. Then adding an indifferent electrolyte increases the ionic strength. ठीक है. ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारा ionic strength जो है वो increase करेगा of the solution, which has the effect of compressing the EDL. Okay. As the counter ions are pushed closer to the surface, the repulsion force become easier to negate by van der Waals forces. So if you go with this diagram, so in this curve you can see this is the distance from the surface. Okay, distance from the particle surface. Surface का मतलब है कि particle surface. And this is your net potential in y-axis. You can see this is a low ionic strength. ये जो आपका है, this is your low ionic strength, whereas this is a higher ionic strength. आपको जो higher ionic strength रहेगा वो आपका inside की तरफ में रहेगा. Okay. Adsorption and charge neutralization. This is the second method. If charged positive counter ions have a specific affinity for the surface of the colloid, not merely electrostatic attraction, then adsorption of a counter ion will reduce the primary charge of the colloid. This will reduce the net potential psi at any particular distance r, thus making the attraction forces more effective. Therefore, ZP means zeta potential is likely to be reduced. Adsorption and interparticles bridging. In this case, polymer, metal, salt, or a synthetic organic type specially absorbed to a surface, often charges neutralizes occurs, but further other part of the polymer absorbed to other colloids. This form of polymer bridges as schematically shown.
here I will show a diagram as well. In reaction to specifically it is showing. I will show this here. Using the definition discuss about reaction 1. Okay. कहने का मतलब है कि मैं आपको दो रिएक्शन दिखाता हूँ, जो रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है. But let me complete this. Coagulant and reaction 2 represent flocculation. There is a stoichiometry of a coagulation. Doses of a coagulant is proportional to a coagulant concentration. Okay. जब भी हम बात करते हैं कोएगुलेशन में, तो सिंपली कोएगुलेशन नहीं होता है, दैट इज अ कोएगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन. क्योंकि कोएगुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम डोज को ऐड कर रहे हैं और वहां पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. लेकिन फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि आपका फ्लॉक्स प्रोड्यूस होना शुरू होता है. ओके, सो no way it is flocculation is away from the coagulation. That is the second part of that coagulation. So basically नॉर्मली भी हम अगर बात करते हैं तो जनरली कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. तो और अगर हम दोनों को कंबाइंडली एक साथ बात करते हैं तो दैट इज नोन एज ए क्लैरिफ्लोकुलेटर. तो कभी भी आप लोग कहीं भी इसमें कंफ्यूज मत होना. ओके. सो इन दिस रिएक्शन 1, initial adsorption at the optimum polymer dose. ठीक है. So this is the separate polymer. You can see this is a separate particle. It will be binding to each other. Destabilization practice is happening. So in reaction to flock formation, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली मिक्स हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अभी क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल है वो आपके पॉलीमर के साथ में मिक्स हो गया, लेकिन जब फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा तो ये जो आपने ये बनाया डिस्क्राइब पार्टिकल्स है, ये डिफरेंट डिस्क्राइब पार्टिकल्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, एक तरफ में आ जाएंगे, वो एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे. फ्लॉक फॉर्मेशन फ्लोकुलेशन which will be happen with the perikinetic or orthokinetic. Okay, so you can see it is binded now. After flock formation, this is binded. Okay, now secondary adsorption of a polymer. Secondary adsorption of the polymer. Okay, so what it is saying कि ये जो आपका डिस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स है, जो हमने यहाँ देखा डिस्टेबलाइज्ड पार्टिकल है, तो व्हाट इज हैपनिंग, नो कांटेक्ट विद द वैकेंट साइड ऑन अनदर पार्टिकल्स. ठीक है. तो उसका कोई दूसरे और पार्टिकल के साथ में कांटेक्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल कहलाएगा. मतलब वो जो पॉलीमर है वो कंप्लीटली उसी पार्टिकल के ऊपर में अपना वर्कआउट करेगा. दैट विल बी नोन एज अ रीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल. ओके. सो लास्ट वन इज अ स्विफ्ट फ्लॉक. If metal salt, example Al2SO4 whole thrice or FeCl3, are added in a sufficient quantity to exceed the solubility product. I repeat, if metal salts are added in a sufficient quantity to exceed the solubility products of the metal hydroxide or sometimes carbonates, a sweep flock will form. ठीक है. झाग के जैसे आप देखोगे कि मतलब आ जाता है वो. ओके. Colloids will become immersed in the settling sweep flock and be removed from the suspension. अगर सेटल नहीं भी हो रहा होगा, अगर वो एक जगह भी इकट्ठा होगा, तो जैसे हम स्कीमिंग टाइम में ऑयल को रिमूव कर लेते हैं, तो आप उसको वैसे भी सस्पेंशन से ही आप उसको बाहर कर सकते हो. दैट इज वन ऑफ द मेथड. उसको हम बोलते हैं आपका स्वीप फ्लॉक. कहने का मतलब ये है कि से सपोज करो कि अगर आपका ये वाटर है और वाटर में ये जो फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो गए हैं एंड दे आर नॉट सेटलिंग, ये फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो गए, दे सेटल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हम स्कीमिंग टाइम में क्या करते हैं कि एक अपैरेटस रहते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किम कर लेते हैं. तो वैसे ही आप इसको क्या करोगे, बाहर स्विप आउट कर लोगे, बाहर इसको रिमूव कर लोगे. सो दिस इज द प्रोसेस. सो कोआगुलेशन डोज फाइनलाइजेशन. ठीक है. अब जो भी हमने देखा वो किस तरह से उसका केमिस्ट्री है, किस तरह से वर्क करता है, दैट वाज डन. बट हाउ यू विल फाइनलाइज द डोज, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो जनरली दिस इज डन इन द जार टेस्ट apparatus. ठीक है. एक्चुअली उसका नाम जार टेस्ट apparatus नहीं है, दैट इज अ स्टेरर apparatus, बट एनी हाउ उसको हम जार टेस्ट apparatus करके ही बोलते हैं. ओके. सो जार टेस्ट सिमुलेट द कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस. देखो दोनों भी चीजें एक साथ होगी इन अ बैच मोड, और ये क्या होता है, आपका बैच मोड में होता है. अ सीरीज ऑफ बैच टेस्ट आर अ रन इन विच आप 6 कंटेनर ले लोगे, 6 बीकर्स ले लोगे और 6 पेडल्स के नीचे आप उसको इंसर्ट करोगे, और उसमें सब में आपको पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा. यू हैव टू ऐड अ कोआगुलेंट.
यू हैव टू ऐड अ डोजेज, और उसमें क्या करने पड़ेगा आपको, डोजेज वेरिएशन करने पड़ेंगे. ओके, you have to add a coagulant aid are varied to get the optimal doses. तभी आप जब डिफरेंट डिफरेंट डोज लोगे और डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में सेम क्वालिटी ऑफ वाटर रखना है, अलग अलग क्वालिटी नहीं रखना है, सेम क्वालिटी रखना है. और ये टेस्ट एक साथ साइमल्टेनियसली करते हैं, तो जिससे हमको पता चलेगा विच डोज इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लोवेस्ट रेसिडुअल टर्बिडिटी, जो कि हम बोलते हैं ऑप्टिमल डोजेस. And economy analysis is performed to select these parameters. आपका एक इकोनॉमिक एनालिसिस भी आपको करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहिए इसको सेलेक्ट करने के लिए. जाट इज जनरली आप परफॉर्म यूजिंग 6 1 लीटर्स. आपके पास 6 बीकर्स होने चाहिए, कितने के, एक 1 लीटर के होने चाहिए. एंड हैव सैंपल ऑफ द वाटर और अ वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड. आपको जिसको भी ट्रीट करना है, वाटर को करना है, वेस्ट वाटर को करना है, तो वहीं से आपको सैंपल लेना है जाट टेस्ट के लिए. To these samples are range of a coagulant and possibly coagulant aid, coagulant and possibly coagulant aid. Doses is added. कैसे ऐड कर रहे हैं? One sample is usually a blank. 6 अगर आप ले रहे हो तो 6 सैंपल में से एक सैंपल आपका ब्लैंक रहना चाहिए. ठीक है, बाकी के सैंपल्स में आप 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg as per your need you can take it. Immediately after the coagulant is added, the samples are flash mixed. जैसे ही आपने कोएगुलेंट ऐड किया, हम क्या करेंगे, पेडल्स रहते हैं जाट टेस्ट में, हम उसको रोटेट कर देते हैं ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट. उसको हम, आप घड़ी अपना देखते रहो, 1 मिनट तक रखोगे, उसको स्टर करोगे. द स्टर स्पीड इज देन रिड्यूस टू सिमुलेट अ फ्लोक्चुएशन बेसिन. अब यहाँ पे जो हम रैपिड, इसको बोलते हैं रैपिड मिक्सिंग. आप जो ये 1 मिनट के लिए आप जो मिक्सिंग करने वाले हो, दैट इज नोन एज रैपिड मिक्सिंग. जो रैपिड मिक्सिंग होता है, यू कैन go with 150 to 200 RPM. इतना स्पीड से आपको 1 मिनट ले करना पड़ेगा. The stirrer speed is then reduced. अब वो 150 से तो आपका 200 था, तो उसको हमने क्या किया, अब उसको रिड्यूस किया टू सिमुलेट अ फ्लोक्लेशन बेसिन. मतलब फ्लोक्लेशन बेसिन में जब आपका वाटर जाता है, ठीक है, तो उसमें कितना आपका आरपीएम होना चाहिए, उतने आरपीएम को हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है. Okay, floculation mode is generally maintained for about 20 minutes. आप जो floculation कर रहे हो, that will be near about 20 minutes. At the end of floculation period, the stirrer are turned off and the flux is allowed to settle. अभी क्या हो गया, आपने एक initially बहुत rapid mixing किया, 150 से 200 RPM दिया, that was the first part. Second part ये है कि आपने slow mixing दिया, ठीक है, तो से 30 और 40 RPM, तो डेट विल बी 20 मिनट्स के आपने प्रोवाइड किया. उसके बाद में आपने जो फ्लॉक्स क्या प्रोड्यूस हो गए, एक बार जब फ्लॉक्स आपके प्रोड्यूस हो गए, तो उस फ्लॉक्स को सेटल होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. सो यू कैन गिव टाइम फॉर 1.5 आवर. ठीक है, तो दिस मच टाइम यू कैन प्रोवाइड. आफ्टर दिस सेटलिंग पीरियड, a supernatant sample are drawn off from each sample and analyze of turbidity and sometimes alkalinity and pH. ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है कि जैसे ही आपके सारे पार्टिकल सेटल हो गए, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ऊपर से जो सुपरनेटेंट बॉटल्स है, तो वहां से आप उसका सैंपल ले लीजिए. ठीक है, और उस सैंपल का आपने क्या क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टर्बिडिटी, यू हैव टू फाइंड आउट अल्कलिनिटी एंड पीएच वैल्यूज. ठीक है, ये तीनों भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. सो दिस इज द जार टेस्ट apparatus. तो जनरली हम बोलते हैं जार टेस्ट apparatus in normal way, but the actual name is a gang stirrer apparatus. The actual name is a gang stirrer apparatus. Okay, so आप देखिए ये एक आपका स्टैंड है. दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैंड, और यहाँ पे ये जो रीडिंग्स है, कितना आरपीएम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें शो होता है. नाउ shafts are various shafts are provide like 1 या ये के various stirrers are provide 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और हर एक स्टर के नीचे हमें देखो बीकर्स भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6. लेकिन हर बीकर में आपका 1 लीटर आपका सैंपल होना चाहिए और आपका डोज वेरिएशन करना चाहिए. से सपोज करो कि हम बात करते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट सैंपल, तो फर्स्ट सैंपल हमने क्या किया, ब्लैंक रखा. बाद में यहाँ पे
हमने 1 mg per liter, 2 mg per liter, 3 mg per liter, 4 mg per liter, 5 mg per liter, right? If suppose somebody wants that you have to go with a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, it's your choice. Okay, तो आपको इस तरह से डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो पैडल है, these are the paddles. Okay, this is the paddle, this is the paddle. Okay, these are known as stirrers. ठीक है, पहले इनिशियली हमने क्या किया, उसे रैपिड मिक्सिंग किया 1 मिनट के लिए, फिर हमने स्लो मिक्सिंग किया 20 मिनट्स के लिए, फिर हमने क्या किया, उसको अलाउ किया सेटल होने के लिए. सो complete process whatever I just informed you, everything is given in a video. Let me show you this also. Is it audible and visible? Is it audible or is it audible and visible? Please. Yes, sir. Okay, okay. It is not audible, sir. Somebody said something. Is सर it not आवाज audible? नहीं आ रहा. कुछ भी नहीं आ आवाज रहा. नहीं आ रहा, sir. It is not audible. नहीं सर. You can check very minutely the flocks where get settled. Okay.
So these are the some common coagulant which are used in a water treatment plant: aluminum sulfur, aluminum sulfate, aluminum chloride, polyaluminum chloride (PaC), and aluminum chlorohydrate (ACH), ferric sulfate and ferrous sulfate, and ferric chloride. Okay. So whatever I've instructed you in this picture, in this description, the same thing is told by that, same thing is told in that video only. Okay. That is also I will share with you, not so worried. Okay. So selection of coagulant is also very important. Based on that only the efficiency will be seen. The choice of the coagulant chemical depend upon the nature of the suspended solid to be removed. आपके किस टाइप के मटेरियल को आपको रिमूव करना है, किस टाइप की इम्प्यूरिटी को आपको रिमूव करना है, आपका चॉइस ऑफ कोएगुलेंट भी वैसे ही होना चाहिए. द रॉ वाटर कंडीशन, आपका जो रॉ वाटर है उसकी कंडीशन क्या है उसको भी आपको सोचना है. द फैसिलिटी डिजाइन आपको क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ केमिकल नेसेसरी टू प्रोवाइड द डिजायर्ड रिजल्ट. अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में आपका टर्बिडिटी होगा तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको आपको अगर टर्बिडिटी ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट आपका आएगा. ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपका क्या डिजायर्ड रिजल्ट है उस पर. ठीक है. तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कोएगुलेंट्स शुड बी मेड फॉलोइंग थ्रू अ जार टेस्टिंग एंड प्लांट स्केल इवेल्युएशन. आपका जो भी आपका डोज आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी आप कोएगुलेंट डोज डिसाइड करोगे, दैट विल बी प्राइमरली डन फ्रॉम योर जार टेस्टिंग, वहीं से होगा, और बाद में एक बार आपने उसे प्लांट में यूज करके देखना है. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस यू विल फाइनलाइज. कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू रिक्वायर्ड एफिलेंट क्वालिटी. आई रिपीट, consideration must be given to required effluent quality, effect upon downstream treatment process, performance, cost method and cost of such handling and disposal, and net overall cost at the dose of required for the effective treatment. Okay, so inorganic coagulants होते हैं, तो inorganic coagulants which are not biodegradable को हम बोलते हैं आपके inorganic coagulants. The inorganic coagulants such as aluminum and iron salt, these are very rich and which are basically used in this aluminum and iron salt, क्योंकि starting से हम जो chemical reaction में भी देख रहे हैं तो उसमें aluminum and iron की ही बात कर रहे हैं, are the most commonly used. When added to the water, when it is added to the water, they furnish highly charged ions to neutralize the suspended particles. वो जो कोएगुलेंट से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, इम्प्यूरिटीज को. द इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म प्रोड्यूसेस शॉर्ट पॉलीमर चेन व्हिच एनहांस द माइक्रोफ्लॉक फॉर्मेशन. इनऑर्गेनिक कोएगुलेंट यूजुअली ऑफर द लोएस्ट प्राइस पर पाउंड, यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो पर केजी, आई एम सॉरी ये पाउंड में लिखा है, प्राइस पर केजी आर वाइडली अवेलेबल and when properly applied are quite effective in removing the most suspended solids. They are also capable of removing a portion of the organic precursor which may combine with the chlorine to form a disinfection byproduct. They produce a large volume of a floc which can entrap bacteria as they settle. However, they may alter the pH of the water since they consume alkalinity. When applied in lime soda ash softening processes, alum and iron salt generate demand for a lime and soda ash. They require a corrosion resistant storage and feed. They required a corrosion resistant storage and a feed equipment. अभी जो corrosion वाला ही आया है इसलिए आया है ताकि क्योंकि यहाँ पे ये iron salt use कर रहा है, aluminum salt use कर रहे हो, तो iron salt basically is responsible for the corrosiveness. So we have to take care of that. The large volume of a settled floc must be disposed of in an environmentally accepted manner. आपका जो भी आपका स्लज बनेगा या फ्लॉक सेटल होगा तो उसे डिस्पोज ऑफ करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. आपका जो इनऑर्गेनिक कोएगुलेंट है यूजुअली दे आर गिविंग अ गुड हाई रिजल्ट्स, उसके हाई एफिशिएंसी रहती है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक वन, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होगा, रिमूव तो करेगा बट साथ में वो जब सेटल होगा तो स्लज फॉर्मेशन भी उसका ज्यादा हो जाता है. सो
that's why. Then common coagulant chemicals used are alum ferric sulfate, use are alum ferric sulfate, ferric chloride, ferrous sulfate, and sodium aluminate. So these are the widely used coagulant. Okay, the first four will lower the alkalinity and pH of the solution, while the sodium aluminate will add alkalinity. ठीक है, ये पांच में से एक ही है जो आपके अल्कलिनिटी को ऐड करता है एंड रेज द पीएच, और जब अल्कलिनिटी बढ़ रही है तो पीएच का वैल्यू 7 के पार जाना तय है. द रिएक्शन ऑफ ईच इज एज फॉलोज. उसमें से मैं तीन आपको शो कर रहा हूँ. which is widely used is alum Al2SO4 whole thrice plus 3Ca HCO3 whole twice. So this is a calcium bicarbonate. It gives aluminium hydroxide AlOH whole thrice, साथ में देगा calcium sulfate CaSO4 and calcium dioxide that is a CO2. ठीक है. So ferric sulfate when react with the calcium bicarbonate, so this will give you ferric hydroxide that is FeOH whole thrice. Then calcium sulfate, यहाँ पे जैसे ऊपर एलम में हो रहा था वैसे ही calcium sulfate CaSO4 as well as carbon dioxide CO2. Okay. Ferric chloride FeCl3, twice of FeCl3, that's a ferric chloride. When react with the calcium bicarbonate in present in the water to treat, this will give you ferric hydroxide that is FeOH whole thrice, then a calcium chloride CaCl2 and carbon dioxide. Okay, so in this way this reaction goes on. Then coagulant introduction with rapid mixing. अगर हमने rapid mixing किया तो फिर कैसा? The coagulant must be mixed with the water that we are doing. आपका जो coagulant है वो proper तरीके से mix हो जाना चाहिए. जब हम alum की बात करते हैं तो alum bars को use करते हैं. ठीक है, तो हमें पाउडर फॉर्म में यूज करना चाहिए और वो सो दैट वो आपके जो वाटर है उसके साथ में थोरोली मिक्स हो जाएगा. इफ यू सिंपली पुट आयरन बार तो उतना थोरोली मिक्सिंग होता नहीं है उसका. बट वी आर ट्राइंग टू गिव दैट मिक्सिंग बाय यूजिंग अ partial plume. Okay, sorry, partial plume बोलता हूँ मैं. That is done by providing a venturi. Okay, retention time is the mixing zone are typically between 1 to 10 seconds. Retention time in the mixing zone का जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे आपका वाटर और एलम जब मिक्स करो या कोएगुलेंट आप जब यूज मिक्स कर रहे हो तो उसका मैक्सिमम टाइम आपका 10 सेकंड तक रहेगा. सो टाइप ऑफ रैपिड मिक्स यूनिट कैसे हो सकता है? या तो आप पंपिंग के थ्रू कर सकते हो, पंप के थ्रू कर सकते हो, हाइड्रोलिक जंप्स आप प्रोवाइड कर सकते हो. Let me tell you what do you mean by hydraulic jump. Confusion नहीं होना चाहिए. Say suppose this is your alum jar. Okay, this is your alum. Sorry, alum jar नहीं. This is your alum bar. ठीक है. What will happen? Suppose this is slope like this. ये आपका slope ऐसा है जहाँ पे आपका water ये यहाँ से आ रहा है. ठीक है, यहाँ से आपका inlet है. Okay. जब वाटर आएगा तो क्या होगा? ये वाटर आके इसके ऊपर जंप करेगा. आपका जो भी वाटर है दिस विल बी गो इन दिस वे. व्हेन योर वाटर विल कम दिस विल बी जंप दिस वे एंड वाटर विल गो दिस वे. ओके, तो दिस मच पोर्शन जो है, ये जो आपको पोर्शन है जब वाटर स्ट्राइक करके जब उसके ऊपर से जाएगा, सो दैट विल बी नोन एज अ हाइड्रोलिक जंप. अगर ये वाटर इतने ऊपर से बाहर निकल जाएगा सो व्हाट इज द यूज? कोई यूज नहीं है उसका, क्योंकि जो वाटर आपके एलम के कांटेक्ट में आना चाहिए था 10 सेकंड के लिए वो हो नहीं रहा है. आई रिपीट, जो वाटर इस एलम के कांटेक्ट में आना चाहिए था 10 सेकंड के लिए वो हो नहीं रहा है. सो यू हैव टू मेंटेन दी हाइड्रोलिक जंप. ये हाइड्रोलिक जंप आपको मेंटेन करना चाहिए हमें. ओके, दैट विल बी बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज आपके आप प्रोवाइड कर रहे हो. So this is important कि ये आपका जो स्लैब है इस स्लैब के ऊपर से ही पास होना चाहिए. Okay, so that's why hydraulic jump is important. Flow through basin with many baffles. अभी इसमें क्या होता है कि से सपोज करो कि आपका ये सरफेस है, ये इस इंक्लाइन जोन में, मतलब बाय ग्रेविटी आपका वाटर जो इस डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इसका जो भी चैनल होगा, अगर ये ऐसा, अगर मैं इसको टॉप व्यू से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे इसका विड्थ, यहाँ पे उसका विड्थ, सभी में उसका विड्थ कॉमन है, ठीक है, सभी में उसका विड्थ कॉमन है। बट अगर मैंने कोई एलम डोज यहाँ पे ऐड किया, व्हाट इज द गारंटी कि वो थॉरली इतने एरिया को वो कवर कर रहा है? There is no guarantee that when we are putting the alum dose of coagulant, it will cover all these portions. So that is not practically भी possible, क्योंकि एक तो उसका फ्लो भी है, वाटर का फ्लो भी है, और उसको मिक्स भी होना है, तो इतना हमारे पास में टाइम नहीं है उसको मिक्सिंग देने के लिए। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, हमने ये चीज तो कर दिया यहाँ पे कि हमने डोज ऐड कर दिया, बट व्हाट यू कैन डू एक्स्ट्रा, what you can do as an extra, you can provide a baffle walls। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बैफल वॉल प्रोवाइड करो, यहाँ पे एक बैफल वॉल प्रोवाइड करो, यहाँ पे एक बैफल वॉल प्रोवाइड करो, यहाँ पे एक बैफल वॉल प्रोवाइड। अब इसमें क्या होगा कि जितना भी सॉल्यूशन है, दिस विल बी ट्रेवल ओवर हियर स्टैकिंग दिस एंड अगेन इट विल गो, रुकते रुकते जाएगा, तो उसको मिक्सिंग टाइम उसको आप दे रहे हो। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि अगर आप उसमें बैफल वॉल प्रोवाइड कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, there's a one more concept, there's a one more concept कि जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, कोएगुलेंट ऐड किया, ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया, if we reduce this area, if we reduce this area, so what we're trying to do, अगर मैं ये एरिया को ही मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, तो स्मॉल स्पेस दिया मैंने, तो क्या होगा, ये स्मॉल स्पेस के कारण क्या होगा, हाईली टर्बुलेंट हो जाएगा वाटर वहां पे। इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हाईली टर्बुलेंट हो जाएगा, और वो हाईली टर्बुलेंस के कारण क्या है कि आपका जो डोज है वो और आपका जो वाटर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंड दैट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट्स। सो इनलाइन ब्लेंडर्स कैन आल्सो यू कैन प्रोवाइड ओवर देयर। The coagulant must be uniformly mixed with the raw water. That is very very important. आपका जो भी coagulant है वो आपके raw water के साथ mix होना ही चाहिए। In case mixing is poor, local under and overdosing occur, resulting in poor performance of the process। अगर वो mixing नहीं होगा तो क्या होगा, आपको वो efficiency नहीं देगा जो आप desire सोच रहे हो। The parameter expressing mixing intensity is called the velocity gradient or G value. No, this G value can be defined by, this is a velocity gradient for the rapid mixing. You can derive from this equation P by mu minus V, whereas P is a dissipated power, Gc is the velocity gradient, mu is a dynamic viscosity, V is the volume of a mixing tank. Okay. The influence of the velocity gradient can be determined by a Jartas equipment. तो आप क्या है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो जार्टस के थ्रू। When the velocity gradient is low, यानी कि लो का मतलब है कि less intensive mixing, the residual turbidity will be higher in the situation where the velocity gradient is high। बहुत ज्यादा अगर आपने हाई प्रोवाइड कर दिया है तो there will be also chances कि वो मिक्सिंग नहीं होगा। तो स्लोली मिक्स करो, उसको टाइम दीजिए मिक्सिंग होने के लिए, तो आपका जो टर्बिडिटी रेसिडुअल है वो अच्छा हो जाएगा। 2 मिनट में खत्म कर दो। In practice, the recommended G value for rapid mixing is about 1500 per second। खत्म हो गया। I'm closing it, but okay. So this is all about for today's topic. We have seen the coagulant process. So in next class we'll see about the flocculation process. Okay. So if you have any doubts, you can stay over here for next 5 minutes, or you can leave for your next classes by punching your roll numbers, right?